خان پیلس کی چھت پر آفتاب پوری تمکنت کے ساتھ طلوع ہوا تھا، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آج کا یہ روشن سورج اس گھر میں ہمیشہ کے لیے اندھیرا کر دے گا۔ خان پیلس میں سب کو ہی صبح سویرے اٹھنے کی عادت تھی، اسی وجہ سے یہاں دن جلدی شروع ہو جایا کرتا تھا۔ معاذ خانزادہ بھی اس وقت اپنے کمرے میں کھڑا آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس، میرون رنگ کی ٹائی لگائے وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ اس پر اس کی سبز آنکھیں اسے ایک الگ ہی کشش بخشتی تھی۔ لڑکیاں معاذ خانزادہ کی ایک نظر کے لیے مر مٹنے کو تیار تھی، مگر وہ کسی کی جانب دیکھتا ہی کب تھا۔ وہ خود میں مگن رہنے والا انسان تھا، اس کے لیے اس کا کام سب سے پہلے تھا، باقی کسی بھی خرافات کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ حالانکہ اس کی چاچی اسے کتنی ہی بار شادی کے لیے کہہ چکی تھی، مگر وہ ہر بار ان کی بات ٹال جایا کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی چچی اپنی بیٹی سے اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں، مگر نہ تو اسے شادی میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی ان کی بیٹی میں کوئی دلچسپی تھی۔ اسے فوزیہ جیسی بولڈ اور منہ پھٹ لڑکیاں پسند نہیں تھی۔ چچی نے اپنی بیٹی کو بہت آزادی دے رکھی تھی اور وہ ان کی اسی بات پر ان سے نالاں رہتا تھا، اسی لیے وہ اپنی بہن سامیہ کو زیادہ تر فوزیہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ معاذ خانزادہ کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ معاذ اور اس کی بہن سامیہ اپنے گھر میں ہی رہتے تھے اور ساتھ ان کے چچا چچی اپنی بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ جس وقت معاذ کے ماں باپ کا انتقال ہوا تھا، معاذ 20 سال کا تھا، جبکہ سامیہ 12 سال کی تھی۔ معاذ سمجھدار تھا، اپنے آپ کو سنبھال سکتا تھا، مگر سامیہ بچی تھی، وہ ماں باپ کی جدائی سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ معاذ ہی اس کے لیے اس کے ماں باپ بن گیا۔ معاذ کی اپنی بہن میں جان بستی تھی، وہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ اس لیے جب سامیہ نے کالج جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو معاذ کو اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ وہ خود سامیہ کو لے کر کالج جانا چاہتا تھا، مگر معاذ کو آفس جانے کے لیے جلدی گھر سے نکلنا پڑتا تھا اور سامیہ کچھ دیر سے کالج جاتی تھی، اسی لیے معاذ نے یہ ذمہ داری اپنے بھروسے مند ڈرائیور کو سونپ دی۔ مگر وہ پھر بھی سامیہ کے لیے فکر مند تھا۔ اس کے لیے سامیہ آج بھی وہی 12 سالہ بچی تھی جو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ڈر کے مارے اس کی پیٹھ پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ سامیہ کو اس ظالم زمانے سے بچا کر رکھنا چاہتا تھا، ہر لمحہ اس کا سایہ بن کر اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ سامیہ کی دوستی کالج میں سمرا سے ہوئی تھی۔ سمرا ایک پڑھے لکھے اور روشن خیال خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ کالج میں ہی سمرا اور سامیہ کی دوستی ہوئی، وہ دونوں گہری دوستیں بن چکی تھیں۔ سمرا کو کالج سے لینے اس کا بھائی آتا تھا۔ جانے کب اور کیسے سامیہ اور عالم ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگے اور سمرا کو اس بات کی کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ سامیہ نے بھی یہ بات سمرا سے چھپائی تھی۔ سامیہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اگر معاذ خانزادوں کو ان سب کے بارے میں پتہ چل جاتا تو گھر میں ایک طوفان آ جاتا۔ سامیہ جانتی تھی کہ معاذ اس معاملے میں کتنا سخت تھا، وہ کسی بھی قیمت پر یہ سب کچھ برداشت نہیں کرتا، اس لیے اس نے یہ بات سب سے چھپائی تھی۔ یہاں تک کہ سمرا کو بھی اس بات کی خبر نہیں لگنے دی تھی۔ وہ بس اس بات سے ڈرتی تھی کہ کہیں معاذ کو ان سب کی خبر نہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو معاذ کبھی بھی سامیہ کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دیتا۔ عالم اور سامیہ کی خفیہ ملاقاتیں جاری تھیں۔ سامیہ نے عالم کو اپنے گھر رشتہ لانے کو کہا۔ عالم بھی سامیہ سے سچی محبت کرتا تھا، وہ اس کے گھر رشتہ لے جانا چاہتا تھا، اس لیے عالم نے اس بات کا ذکر اپنے گھر میں کیا۔ سمرا کو پہلے پہل تو عالم اور سامیہ کے بارے میں سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا اور پھر وہ خوشی سے پاگل ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائی اور دوست کی خوشی میں بہت خوش تھی۔ گھر میں بھی کسی کو سامیہ کو اپنی بہو بنانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ لوگ یہ بات سمجھتے تھے کہ زندگی ان دو لوگوں نے گزارنی ہے، اگر جیون ساتھی اپنی پسند کا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سمرا نے اسی وقت سامیہ کو فون کیا۔ سامیہ، تم اور بھائی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ سمرا نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورتوں والے انداز میں کہا تھا۔ سمرا پلیز، سوری، مجھے تو ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ بھائی کے ری ایکشن کے بارے میں سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی ہے۔ اگر کل انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ سامیہ نے روحان سے لہجے میں کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر سمرا نے اسے ہلکے پھلکے لہجے میں تسلی دی۔ تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ میرا بھائی اتنا اچھا ہے کہ تمہارا بھائی اسے انکار ہی نہیں کر سکتا۔
समरा ने मुस्कुराते हुए पूरे यकीन से कहा था, जबकि सामिया गहरी सोच में गर्क हो गई थी। अगले रोज समरा और उसके घर वाले सामिया के घर आलम का रिश्ता लेकर गए थे। सामिया बेहद डरी हुई थी, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जबकि उनके सामने बैठे मास खानजादा ने सर्दो सपाट नजरों से अपनी बहन के झुके हुए सर को देखा, जो एक कोने में खड़ी कांप रही थी, जबकि मास खानजादा की आंखों में सुर्खी उतर आई थी। उसके चेहरे पर साफ साफ रकम था कि उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आया। बेटा, जिंदगी तो बच्चों ने ही गुजारनी है। अगर आलम और सामिया एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आलम की माँ सूफिया बेगम ने मास खानजादा के चेहरे के बिगड़े तासुरात देखते हुए उसे नरम लहजे में समझाने की कोशिश की। आप लोग यहाँ मेरी बहन का रिश्ता लेकर किसकी इजाज़त से आए हैं? मास ने सूफिया बेगम की तरफ देखते हुए सर्द और खुश्क लहजे में सवाल किया, मगर उसका सवाल इस कदर चुभता हुआ था कि सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, जबकि मास की चच्ची गुल बेगम के चेहरे पर दबी दबी सी मुस्कुराहट उभरी। आलम ने बेचैनी से पहलू बदला था, जबकि समरा हैरत से अपने सामने बैठे इस अक्खड़ दिमाग और मगरूर शख्स को देख रही थी, जो कोई भी बात सुनने और समझने को तैयार ही नहीं था। माहौल में अजीब सी कशीदगी फैल गई थी, जबकि सूफिया बेगम अपनी जगह बेहद शर्मिंदा हुई थी। आलम ने अपनी माँ के चेहरे पर फैलती शर्मिंदगी को वाज़ेह तौर पर देखा था। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि उसकी वजह से उसकी माँ शर्मिंदा होती। उसे बहुत अच्छी तरह से एहसास था कि उसके बाबा के गुजर जाने के बाद उसकी माँ ने कितनी मेहनत से उन दोनों बहन भाइयों को पाला था, और आज वो अपने बेटे की वजह से एक बददिमाग शख्स के सामने शर्मिंदा सी बैठी थी। देखिए माँ साहब, मैं और सामिया एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं बहुत इज्जत और एहतराम से आपके घर अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं इसे इज्जत से अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, मगर अपने घर वालों की बेइज्जती करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। आलम ने इंतहाई सब्र व तहम्मुल से मास की आंखों में आंखें डालते कहा था, जबकि मास ने मुट्ठियां भींचकर आलम को देखा और अपनी जगह से खड़ा हुआ। आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, वरना मेरे गार्ड्स आपको धक्के मारकर मेरे घर से निकाल देंगे। मास ने आलम की आंखों में आंखें डाले सर्दो सपाट लहजे में कहा, जबकि अपने भाई की बात सुनकर सामिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो मुसलसल आलम और उसके घर वालों की बेइज्जती कर रहा था। आलम, सूफिया बेगम और समरा तीनों ही बेख्तियार अपनी जगह से खड़े हुए। आलम ने सामिया की तरफ देखा था। सामिया ने बेख्तियार उसे नजरें चुराई थी और फिर वो अपनी जगह से चंद कदम आगे बढ़ी थी। भाई प्लीज ऐसा मत करें, सामिया ने बमुश्किल रोंदे हुए लहजे में मास से कहा। मास ने खा जाने वाली नजरों से सामिया की तरफ देखा। आप लोग यहाँ से जा रहे हैं या मैं गार्ड्स बुलवाऊं? मास ने एक बार फिर से ऊंची आवाज में कहा। तो आलम ने कहर भरी मास पर नजर डाली और सूफिया बेगम और समरा को लेकर वहां से निकल गया। यहाँ आते हुए वो तीनों जिस कदर खुश थे, अब उतने ही उदास और गमगीन थे। आलम बिल्कुल खामोशी से ड्राइव कर रहा था, जबकि उसके बराबर में बैठी सूफिया बेगम भी बिल्कुल खामोश थी, जबकि समरा अब तक बेयकीन थी कि कोई ऐसा भी हो सकता है। उसे रह रहकर सामिया का ख्याल आ रहा था। उन लोगों के जाने के बाद मास ने शोले बरसाती निगाहों से अपनी बहन को देखा और फिर अपनी चच्ची गुल बेगम की तरफ देखा था। चच्ची, इसके लिए कोई रिश्ता देखें, मजीद इससे इस घर में मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जल्द ही इसकी शादी करके इसे यहाँ से रुखसत कर दूँगा। मेरी मोहब्बत का इसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मास ने अफसोस से अपनी बहन को देखते कहा था, जिस पर वो आंखें बंद करके यकीन कर सकता था, मगर उसी ने उसकी एतमाद की धज्जियाँ बिखेर दी थी। भाई प्लीज़, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं आलम से मोहब्बत करती हूँ, सामिया ने तड़प कर मास से कहा था, जबकि मास ने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियाँ भींची थी। सामिया, उस वक्त मेरी नज़रों के सामने से चली जाओ, ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में कुछ कर बैठूं, मास ने हलक के बल चिल्लाते हुए कहा था, जबकि सामिया की आंखों में खौफ उभरा था। उसने पहली बार मास को इस कदर गुस्से में देखा था, वरना उसने तो हमेशा अपनी बहन से नरमी और मोहब्बत से बात की थी, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था, मगर जाने क्यों वो उसकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने पर तैयार नहीं था। तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा? चली जाओ यहाँ से अपने कमरे में, आइंदा के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल नज़र ना आए। कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी
और अगर तुमने घर से बाहर कदम रखने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। माज ने सामिया के हाथों से उसका फ़ोन छीना और पूरी कुव्वत से दीवार पर मारा। उसका फ़ोन टुकड़े टुकड़े हो गया। सामिया अपने मुंह पर हाथ रखे हैरानी से अपने भाई का ये रूप देख रही थी। उस रोज़ के बाद से सामिया घर से बाहर नहीं निकलती थी और ना ही माज उससे बात कर रहा था। सामिया अपने कमरे में बंद होकर रह गई थी। गुल बेगम उसके कमरे में आई और उन्होंने सामिया को मुखातिब किया। सामिया, उठकर तैयार हो जाओ, आज शाम तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तुम्हारे भाई ने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है, अब वो लोग रिश्ता पक्का करने आ रहे हैं। गुल बेगम ने सामिया का सुना हुआ चेहरा देखकर कहा था। सामिया उनकी बात सुनकर एक झटके से अपनी जगह से उठी। उसकी आंखें बेयकीनी से फैल गईं। उसने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। चच्ची, आप प्लीज़ भाई को समझाएं, वो मेरे साथ ऐसा ना करें। मैं आलम से बहुत मोहब्बत करती हूँ, अगर मेरी उनसे शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। सामिया ने गुल बेगम का हाथ थामते रोते हुए उनसे इल्तिजा की थी। गुल बेगम ने लब भेंचकर सामिया की तरफ देखा और फिर ठंडी सांस भरी। सामिया, तुम अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती हो। एक बार वो जो ठान ले वही करके रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। गुल बेगम जानती थी कि इस मामले में बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। जो मास चाहता है वही होगा। सामिया ने बेबसी से अपनी चच्ची की तरफ देखा और उस वक्त से शिद्दत से अपनी माँ बाप की कमी महसूस हुई। अगर आज उसके माँ बाप जिंदा होते तो कभी भी उसके साथ ज़बरदस्ती ना होती। वो शिद्दत से रो रही थी। और सामिया, वैसे भी तुम्हें अपना नहीं तो अपने भाई की इज्जत का कुछ ख्याल रखना चाहिए था। उसने तुम पर भरोसा करके तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था, लड़कों से चक्कर चलाने के लिए नहीं भेजा था। अब अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो तुम्हारा भाई अपनी इज्जत बचाने की खातिर कोई तो कदम उठाएगा। तुम तो सारी शर्म बेच कर आ गई हो। किस कदर बेशर्मी और ढिठाई से बार बार उस लड़के का नाम ले रही हो, उससे इज़हार मोहब्बत कर रही हो। शुक्र करो तुम अब तक जिंदा हो। तुम्हारे भाई को तुम्हें जान से मार देना चाहिए था। गुल बेगम ने अपने दिल में मौजूद जहर अपनी ज़बान के जरिए उगला। सामिया सांस रोके उन्हें देख कर रह गई। आज से पहले उसकी चच्ची ने उससे हमेशा मोहब्बत से बात की थी। रिश्ते इस कदर बदल जाते हैं, वो बस सोच कर रह गई थी। गुल बेगम अपने दिल की भड़ास निकाल कर कमरे से बाहर जा चुकी थी, जबकि सामिया सुन बैठी रह गई थी। उसे समझ नहीं आया कि किसी को पसंद करने का जुर्म इतना बड़ा था कि उसे इस तरह से सजा दी जाए। शाम में उसे ज़बरदस्ती तैयार करवा के लड़के वालों के सामने बिठा दिया गया। सामिया का दिल यकदम वीरान सा हुआ। उसने आस भरी नज़रों से अपने भाई की तरफ देखा था, मगर मास खानजादा ने अपनी बहन पर एक नज़र डालना भी गवारा नहीं किया। सामिया ने बामुश्किल अपने आंसू हलक में उतारे। लड़के वाले ये रिश्ता पक्का करके चले गए और अगले माह की शादी की तारीख भी रख दी गई। सामिया तड़प कर रह गई। उसके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे वो आलम से राब्ता कर सकती, उसे बता सकती कि उसके भाई ने उसका रिश्ता तय कर दिया है, अगले माह उसकी शादी करने वाला है। वो बिल्कुल बेबस होकर रह गई थी, यहाँ तक कि उसका कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया गया। सामिया अपने कमरे में बेतहाशा रोई थी, मगर इस घर में कोई भी उसकी हालत पर रहम करने वाला नहीं था। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। समरा भी सामिया को लेकर परेशान थी, क्योंकि वो उस रोज़ के बाद से कॉलेज नहीं आई थी, जबकि आलम भी सामिया के लिए परेशान था, मगर वो दोनों मजबूर थे, कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें सामिया की कोई खैर खबर नहीं थी। सामिया की शादी के दिन नज़दीक आते जा रहे थे और सामिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं बंधना चाहती थी, मगर यहाँ उसकी बात सुनने और समझने को कोई तैयार नहीं था। सब उसकी मोहब्बत को उसका जुर्म समझ रहे थे, जबकि उस दिन के बाद से मास ने सामिया से बात तक नहीं की। वो तो उसकी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं था। इस सब से मजबूर होकर सामिया ने घर से भागने का फैसला किया। आलम को इस बारे में कोई खबर नहीं थी कि सामिया इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है। सामिया रात के अंधेरे में अपने घर से निकल आई थी और इस बात की कानों कान किसी को खबर तक ना हो सकी। सामिया आलम के घर आई। इस वक्त इत्तेफाक से आलम अपने घर के बाहर ही खड़ा था। कुछ वक्त पहले ही यहाँ से उसके दोस्त उठ कर गए थे, अब वो भी घर के अंदर जा रहा था। जब उसने सामिया को अपने सामने खड़ा देखा, चंद लम्हों के लिए वो शशतर रह गया और अपनी आंखों में हैरत और बेयकीनी भरे सामिया को देख रहा था
जबकि सामिया धुंधली होती निगाहों से उसे देख रही थी। मास खानजादा आईने के सामने खड़ा अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसी वक्त गुल बेगम घबराई हुई सी मास के कमरे में आई थी, क्योंकि सामिया अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। उन्होंने अपना शक दूर करने के लिए सामिया को पूरे घर में तलाश कर लिया, मगर सामिया कहीं भी नहीं थी, इसीलिए वो बुरी तरह से घबरा गई थी। मास, सामिया अपने कमरे में मौजूद नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। गुल बेगम ने अपनी मुंतशर होती सांसों को काबू में करते घबराते हुए लहजे में कहा। उनकी बात सुनकर मास ने एक झटके से मुड़कर उनकी तरफ देखा। चच्ची, आप पूरे घर में अच्छे से देखें, कहाँ जा सकती है? मास ने अपने माथे पर बल लाते हुए कहा था, क्योंकि वो अपनी बहन के बारे में ऐसे अल्फाज हरगिज नहीं सुन सकता था। मास, मैं उसे पूरे घर में तलाश कर चुकी हूँ, वो अपने कमरे में भी नहीं है और घर में भी कहीं मौजूद नहीं। चच्ची ने मास से कहा तो अब मास सही मायनों में परेशान हुआ। वो सीधा सामिया के कमरे की तरफ गया था, मगर खाली कमरा उसका मुंह चढ़ा रहा था। यहाँ तक कि मास ने उसे पागलों की तरह सारे घर में ढूंढा था, मगर वो कहीं मौजूद नहीं थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। इस बात का मतलब साफ जाहिर था कि सामिया रात के अंधेरे में घर से भाग गई। गुस्से की शिद्दत से मास की आंखें लहू झलकाने लगी। वो बहुत अच्छे से जानता था कि सामिया भागकर कहाँ गई होगी। वो अपने कमरे में आया और अलमारी खोलकर उसमें सबसे निचले वाले खाने में हाथ डाला। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में पिस्टल मौजूद थी। उसने उस पिस्टल में गोलियां भरी और उसे अपनी जेब में रखकर तेजी से घर से बाहर निकल गया, जबकि गुल बेगम उसे आवाज़ें देती रह गई थी। वो मास के गुस्से से और उसकी गुस्से की शिद्दत से बखूबी वाकिफ थी, इसलिए उन्होंने मास को रोकने की कोशिश की थी, मगर मास ने उनकी एक ना सुनी। वो अपनी गाड़ी में बैठा था और गाड़ी को तेजी से निकाल कर ले गया। कुछ ही देर बाद वो आलम के घर के बाहर खड़ा था। उसने दरवाजे पर बैल दी और साथ ही अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल से दरवाज़ा जोर से बजाया। समरा उसी वक्त सोकर उठी थी। वो काफ़ी दिनों से कॉलेज नहीं जा रही थी, क्योंकि कॉलेज में उसका सामिया के बगैर दिल नहीं लग रहा था, इसीलिए वो आज घर पर थी। जबकि सूफिया बेगम किचन में खड़ी उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी और साथ ही आलम को भी फ़ोन कर रही थी, जो कल रात को घर नहीं आया था। उसने घर के अंदर आकर बस यही बताया था कि एक दोस्त के साथ इमरजेंसी हो गई है, वो वहाँ जा रहा है, सुबह तक लौट आएगा, मगर वो अब तक वापस नहीं आया था। समरा, दरवाजे पर देखो कौन है। समरा, दरवाजे पर देखो कौन है। सूफिया बेगम ने सोफे पर नीम दराज समरा को आवाज़ दी और तवे से पराठा उतार कर ट्रे में रखा। समरा अपनी जगह से खड़ी हुई थी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला, मगर दरवाजे पर मौजूद सामिया के भाई को देखकर उसकी नींद भग से उड़ी। मास खानजादा ने एक नज़र अपने सामने खड़ी छोटी सी लड़की को देखा और फिर घर में दाखिल हुआ। वो सीधा लाउंज में आया था, जबकि साकित खड़ी समरा यकदम ही होश में आई थी, क्योंकि वो उसके हाथ में पिस्टल देख चुकी थी। वो तेज़ी से उसके पीछे लपकी। मास को गुस्से में घर में दाखिल होते देखकर सूफिया बेगम भी अपने हाथ पहुँचती हुई लाउंज में आई। मेरी बहन कहाँ है? आप लोगों ने उसे कहाँ छुपा कर रखा है? मास ने धारते हुए सूफिया बेगम की तरफ देखा था, जबकि सूफिया बेगम के चेहरे पर हैरत उभरी थी। समरा भागकर अपनी माँ के पीछे आकर खड़ी हुई थी। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हमें क्या पता कि तुम्हारी बहन कहाँ है? सूफिया बेगम ने उसके गुस्से से सुर्ख होती आंखें देखी और उसके हाथ में भरा हुआ पिस्टल देखा था, जबकि समरा बुरी तरह से घबराई हुई थी। झूठ बोल रहे हैं आप। मुझे ये बताएं, आपका बेटा कहाँ है? वही रात के अंधेरे में मेरी बहन को घर से भगा कर ले गया है, मास ने चीखते हुए कहा, जबकि उसकी आवाज़ की घन गरज सुनकर समरा ने बेख्तियार अपने कानों पर हाथ रखा। आलम तो अपने दोस्तों के साथ गया है, उसके दोस्त को कोई इमरजेंसी हो गई थी, वो तो अब तक घर नहीं लौटा। सूफिया बेगम ने उसे वजाहत देने की कोशिश की थी। झूठ बोल रहा है आपका बेटा, मेरी बहन कल रात से उसके पास है। आप उसे अभी इसी वक्त फ़ोन मिलाएं और उसे घर बुलाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, माज ने सफाक लहजे में कहा था, जबकि सूफिया बेगम ने पास पड़ा मोबाइल उठाकर आलम को फ़ोन मिलाया, मगर आलम ने फ़ोन नहीं उठाया था। सूफिया बेगम उसे कितनी बार फ़ोन कर चुकी थी, मगर वो जाने कहाँ मसरूफ़ था, उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो बुरी तरह घबरा गई थी, क्योंकि मास खानजादा किसी अफरियत की तरह उनके सर पर खड़ा था। आपका बेटा फ़ोन उठा ले तो उसे बता दीजिएगा कि उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है।
तो उसकी इज्जत भी सलामत नहीं रहेगी। और एक झटके से समरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब घसीटा। समरा की हलक से चीख बरामद हुई, जबकि सूफिया बेगम के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिरा। वो मेरे घर से मेरी इज्जत को लेकर गया है, तो मैं दिन दिहाड़े उसके घर से उसकी इज्जत को लेकर जा रहा हूँ। मास खानजादा ने समरा के बाजू पर अपनी गिरफ्त को सख्त किया, जबकि समरा बुरी तरह से डर गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी थी और मास की गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी। छोड़ो, मेरी बेटी को क्या कर रहे हो? सूफिया बेगम तड़प कर समरा की तरफ बढ़ी थी, जबकि उसी लम्हे मास ने हवा में फायर किया। अगर आपने अपनी जगह से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अगली गोली में आपकी बेटी के सर में मारूंगा, मास ने इंतहाई सफाकियत से कहा था। सूफिया बेगम अपनी जगह थम सी गई, जबकि समरा ने आंखें फाड़े लाउंज की दीवार को देखा, जिससे गोली आर पार हुई थी, और उससे 1 इंच के फासले पर सूफिया बेगम खड़ी थी। मेरी बेटी को कुछ मत करना, इन सब में इसका कोई कसूर नहीं है। सूफिया बेगम ने मास के सामने हाथ जोड़ दिए। अगर आपका बेटा फोन उठा ले तो उसे खबरदार कर दीजिएगा कि उसकी बहन मेरे पास है, मास ने कहकर समरा की कलाई पकड़कर उसे अपने साथ घसीटा। समरा ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर मुकाबिल की गिरफ्त बेहद मजबूत थी। मास ने एक झटके से उसे गाड़ी में धकेला और गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से वहां से निकल गया, जबकि सूफिया बेगम बेजान होते कदमों से जमीन पर बैठी। उसी वक्त सूफिया बेगम के फोन पर आलम का फोन आया। सूफिया बेगम ने कांपते हाथों से उसका फोन उठाया और शिद्दत से रो दी। उन्होंने रोते हुए आलम को सारी बात बताई। आलम उस वक्त सामिया के साथ अपने दोस्त के फ्लैट पर मौजूद था। उसके कदमों तले से जमीन निकली थी। वो बेख्तियार अपनी जगह से खड़ा हुआ और सूफिया बेगम को तसल्ली देकर फोन रख दिया। सामिया ने उसका परेशान चेहरा देखा। तुम्हारा भाई मेरी बहन को घर से जबरदस्ती ले गया है, आलम ने अपने दोनों हाथों में सर थामते हुए कहा। सामिया साकित सी हो गई, उसके दिल की धड़कन रुक सी गई थी। वो अपने भाई के गुस्से से बखूबी वाकिफ थी। उसका भाई बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और सामिया को ये गवारा नहीं था कि उसकी वजह से किसी मासूम की जिंदगी तबाह होती। कल रात को जब वो आलम के पास आई थी तो आलम ने उसे यही कहा था कि उसने अपने घर से भागकर ठीक नहीं किया। कल रात से लेकर अब तक आलम उसे उसके घर जाने के लिए मना रहा था, मगर वो नहीं जानता था कि मास खानजादा की इज्जत पर वार करेगा। उसने हारी हुई नजरों से सामिया की तरफ देखा। सामिया ने बेख्तियार उसे नजरें चुराई। आलम, मुझे घर ले चलें, सामिया ने सपाट लहजे में कहा था। आलम ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मास खानजादा समरा को लेकर अपने घर पहुंचा था और अपने घर के बाहर एक झटके से गाड़ी रोककर गाड़ी से उतरा और समरा को भी गाड़ी से खींचकर निकाला। समरा रोती हुई उसके साथ घसीटती हुई चली जा रही थी। मास समरा को लेकर घर में दाखिल हुआ था और एक झटके से उसका हाथ छोड़कर उसे जमीन पर धकेला। समरा अपनी कोहनियों के बल जमीन पर गिरी। गुल बेगम और फौजिया भी शोर की आवाज सुनकर अपने कमरे से निकल आई थी और अपने सामने आलम की बहन समरा को देखकर दोनों ही शॉक्ड रह गई थी। आलम, ये क्या है? तुम तो सामिया को लेने गए थे, फिर इस लड़की को क्यों लेकर आ गए? सामिया कहाँ है? गुल बेगम ने नासमझी से मां से सवाल किया। अभी कुछ देर में इसका भाई खुद आकर मेरी बहन को यहाँ छोड़कर जाएगा, वरना मैं उसका वो हाल करूंगा कि उसका भाई इसको पहचान नहीं सकेगा, माज ने सफाकियत से कहा और अपनी जेब से फोन निकालकर किसी को मिलाया और उसे निकाह ख्वां को लाने का हुक्म दिया। माज, ये तुम क्या कर रहे हो? गुल बेगम ने फौजिया के सफेद पड़ते चेहरे की तरफ देखकर घबराकर माज से सवाल किया। उस शख्स ने इतनी हिम्मत की कि मेरी बहन को मेरे घर से भगा ले गया। अब मैं उसे बताऊंगा मास खानजादा की इज्जत पर हाथ डालने का क्या अंजाम होता है। मास ने जमीन पर गिरी रोती हुई समरा की तरफ देखकर कहा। उसे समरा के रोने पर बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा था, बल्कि उस लड़की को देखकर उसकी अना को तस्कीन मिल रही थी। मास, इस सब के लिए इस लड़की से निकाह करने की क्या जरूरत है? तुम इसे बगैर निकाह के भी अपनी कैद में रख सकते हो, गुल बेगम ने बौखलाते हुए लहजे में कहा, क्योंकि वो जानती थी कि फौजिया मास खानजादा को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है। जब भी उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। चच्ची, यकीनन मैं आपके रोकने से नहीं रुकूंगा,
آپ بھی یہ بات اور بہت اچھے سے جانتی ہیں، معاذ نے بگڑے ہوئے تیوروں سے کہا۔ گل بیگم خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے تنفر سے زمین پر روتی ہوئی سمرا کو دیکھا اور پھر فوزیہ کی طرف دیکھا تھا جو بالکل ساکت کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح وہاں آ گیا۔ معاذ نے سمرا کا بازو پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب، معاذ نے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے کہا۔ میں اس سے نکاح نہیں کروں گی، سمرا نے غصے سے معاذ کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ اسی لمحے عالم سامیہ کو لے کر معاذ خانزادہ کے گھر پہنچا۔ سمرا اپنے بھائی کو دیکھتے ہی فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے معاذ نے سمرا کی کلائی کو سختی سے تھام لیا۔ اچھا ہوا عالم تم بھی آ گئے، بالکل صحیح وقت پر آئے ہو، تم بھی اپنی بہن کے نکاح میں شریک ہو جاؤ گے، معاذ نے سامیہ کو سرد نظروں سے گھورتے عالم سے کہا تھا۔ عالم نے روتی بلکتی سمرا کو دیکھا۔ میں تمہاری بہن کو واپس لے آیا ہوں، اب میری بہن کو چھوڑ دو، عالم نے ضبط سے کہا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ تم نے رات کے اندھیرے میں میری عزت پر وار کیا تھا اور میں دن کی روشنی میں تمہاری بہن سے نکاح کر رہا ہوں، بہت فرق ہے ہم دونوں میں، معاذ نے سرد تاثرات کے ساتھ کہا۔ بھائی پلیز سمرا کو چھوڑ دیں، ان سب میں سمرا اور عالم کی کوئی غلطی نہیں، میں خود گھر سے گئی تھی کیونکہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، عالم ہی مجھے یہاں واپس لایا ہے، سامیہ نے معاذ کی جانب قدم بڑھاتے کہا۔ معاذ نے سمرا کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ سامیہ نے بے اختیار گہری سانس بھری، مگر اگلے ہی پل معاذ نے ایک زوردار تھپڑ سامیہ کے منہ پر مارا۔ سامیہ بل کھا کر گری۔ اگر عالم بر وقت سے آگے بڑھ کر نہ سنبھالتا تو سامیہ کا سر شیشے کی میز سے ٹکرا جاتا۔ سامیہ کا دماغ بری طرح سے گھوم گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جس نے کبھی اسے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور آج اس نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ گارڈز دور کرو اسے میری بہن سے، معاذ نے دروازے کے پار کھڑے گارڈز کو آواز نکالی۔ دونوں گارڈز تیر کی تیزی سے اندر آئے اور عالم کو بازوؤں سے جکڑ لیا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، معاذ نے سمرا کو صوفے پر بٹھانا چاہا تھا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، سمرا اس کے بازوؤں میں مچلی تھی۔ معاذ نے اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کا رخ عالم کی طرف کیا اور اگلے ہی لمحے فائر کی آواز فضا میں گونجی۔ سمرا کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھیلی، اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی تھی۔ گولی عالم کے بازو میں لگی تھی، وہ زمین پر گر پڑا تھا۔ اگر تم نے ایک بار بھی مجھ سے نکاح سے انکار کیا تو اگلی گولی تمہارے بھائی کے سینے میں ماروں گا، معاذ نے سمرا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زہر خن لہجے میں کہا۔ سامیہ نے تڑپ کر عالم کی طرف بڑھنا چاہا، مگر گل بیگم نے سختی سے اس کا بازو تھام لیا۔ چند لمحوں بعد سمرا اور معاذ کا نکاح ہو چکا تھا۔ اسے اٹھا کر کسی ہاسپٹل میں ڈالا، معاذ نے سرد لہجے میں اپنے گارڈز کو حکم دیا۔ معاذ کے گارڈز نے بے دردی سے عالم کو زمین سے اٹھایا اور اسے لے کر باہر کی طرف بڑھے، جبکہ سمرا بت بنی اپنی جگہ بیٹھی زمین پر پڑے عالم کے خون کو دیکھ رہی تھی۔ عالم کو معاذ کے گارڈز ہسپتال میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ عالم کے بازو پر گہرا زخم آیا تھا، مگر عالم کو اس وقت اپنی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی مرہم پٹی کروا کر سیدھا گھر پہنچا تھا۔ صوفیہ بیگم پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ عالم کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف لپکی، اس کی پوری شرٹ خون سے بھیگی ہوئی تھی۔ عالم یہ کیا ہوا؟ انہوں نے خوف سے پوچھا۔ معاذ خانزادہ نے مجھ پر گولی چلائی تھی، عالم نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا، جبکہ صوفیہ بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا۔ عالم میری سمرا کہاں ہے؟ وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی لے گیا تھا، صوفیہ بیگم نے روتے ہوئے سمرا کے بارے میں سوال کیا۔ عالم نے بے اختیار اپنی آنکھیں میچی۔ امی، معاذ نے سمرا سے نکاح کر لیا ہے، عالم نے سر جھکائے انہیں بتا دیا، جبکہ اس کی بات سن کر صوفیہ بیگم نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کا زرد چہرہ دیکھا جو برسوں کا بیمار اور تھکن زدہ سا لگ رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ میری بچی یہ سب کچھ کیسے برداشت کرے گی؟ اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ اس کی بہن گھر سے بھاگی تھی تو ان سب میں میری بچی کا کیا قصور تھا؟ صوفیہ بیگم بالکل ٹوٹ سی گئی تھی، جبکہ عالم نے اپنے سر کو تھاما تھا۔ سامیہ جب رات کو ہمارے گھر آئی تھی تو تم اسی وقت اسے لے کر واپس کیوں نہیں گئے؟ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔
صوفیہ بیگم کا دل غم کے مارے پھٹ رہا تھا۔ عالم انہیں ساری بات فون پر بتا چکا تھا اور ساتھ ہی انہیں تسلی بھی دی تھی کہ وہ سمرا کو اپنے ساتھ واپس لے کر آئے گا، اور اب وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ معاذ نے سمرا سے نکاح کر لیا ہے۔ انہوں نے بے اختیار اپنے دل کو تھاما۔ دونوں ہی اپنی جگہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک قیامت تھی جو آ کر گزر گئی تھی اور سمرا کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس کا ناشتہ اب تک کچن میں پڑا ٹھنڈا ہو رہا تھا، وہ ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ سمرا معاذ خانزادہ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے بھائی کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ وہ بس ایک بار اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتی تھی اور اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا فون بھی گھر پر رہ گیا تھا، جبکہ سامیہ کو بھی اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا اور اس پر چچی کا کڑا پہرا تھا۔ سمرا کو معاذ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے جانے کتنا وقت گزر گیا اسے کچھ اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ وہ اپنی قسمت پر روئے جا رہی تھی۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اسے سزا سنا دی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد معاذ خانزادہ اپنے کمرے میں آیا۔ قدموں کی آواز سن کر سمرا نے سر اٹھا کر معاذ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں سبز آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ معاذ کو اس کی آنکھوں میں حزن، ملال اور اداسی دکھی تھی۔ وہ چلتا ہوا سمرا کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ سمرا اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ معاذ نے سمرا کو بازو سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور ایک ہاتھ سے اس کے جبڑے کو سختی سے پکڑا۔ سمرا کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ تمہارے بھائی نے میری عزت پر ہاتھ ڈال کر میری غیرت کو للکارا تھا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ معاذ نے نفرت سے اس کے چہرے پر پھنکارتے ہوئے کہا اور پھر اسے یوں ہی روتا چھوڑ کر کمرے سے نکلنے لگا۔ کسی خیال کے تحت وہ یکدم رکا تھا۔ اس نے پلٹ کر گہری نظروں سے سمرا کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا۔ اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اپنے بھائی کی موت کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اور اس بار مجھے تمہارے بھائی کی جان لیتے ہوئے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ معاذ خانزادہ نے شفاقیت سے کہا تھا اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ سمرا بے جان ہوتے جسم اور سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی ڈوبتی ہوئی دھڑکنوں کو سنبھالا تھا۔ معاذ خانزادہ اس کی سوچ سے زیادہ شفاق تھا۔ سامیہ معاذ کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سمرا نے سامیہ کو غصے سے دیکھا۔ سامیہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ وہ سمرا کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو سمرا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بھائی یہ قدم اٹھا لیں گے۔ سامیہ ٹوٹ کر رو دی تھی، یہاں تک کہ اس کی حالت دیکھ کر سمرا بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی رو رہی تھی۔ سمرا کو یہاں آئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ معاذ بہت ہی کم گھر آتا تھا۔ وہ سمرا سے بالکل لا تعلق اور بے پرواہ تھا۔ اسے سمرا کی کوئی فکر نہیں تھی، تو سمرا نے بھی اسے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ معاذ شام کے وقت گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ سمرا خالی خالی نظروں سے دیواروں کو تک رہی تھی۔ اس نے ایک نظر معاذ کی طرف دیکھا اور پھر اپنی نظریں پھیر لی۔ تیار ہو جاؤ، شام کو سامیہ کو دیکھنے کے لیے کچھ مہمان آ رہے ہیں، معاذ نے سمرا کو مخاطب کر کے کہا۔ سمرا نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ جانتے بھی ہیں سامیہ عالم بھائی کو پسند کرتی ہے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں، آپ کے سینے میں دل نہیں ہے کیا؟ سمرا نے افسوس بھرے لہجے میں معاذ سے سوال کیا تھا۔ سمرا کی بات سن کر معاذ نے بگڑے ہوئے تیوروں سے سمرا کی طرف دیکھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی اتنی لمبی زبان ہوگی اسے اندازہ نہیں تھا۔ تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو، معاذ نے درست لہجے میں کہا۔ سمرا اپنی جگہ سے اٹھ کر معاذ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ معاذ اس وقت اپنی الماری میں گھسا اپنی اہم فائل تلاش کر رہا تھا۔ معاذ نے سمرا کی کلائی پکڑ کر اسے الماری سے پن کیا۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو، اگر میں شوہر بن گیا تو تم برداشت نہیں کر سکو گی، معاذ نے سرد لہجے میں اسے دھمکایا تھا، جبکہ سمرا اپنا سانس تک روک گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر معاذ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، جسے اس نے کمال مہارت سے ضبط کیا اور پھر اپنی فائل لیے سمرا کو وہیں کھڑا چھوڑ کر گھر سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد سمرا نے مشکل سے اپنے حواس درست کیے تھے۔ وہ خود بھی اپنے دل کی حالت کو سمجھ نہ سکی تھی۔ اسے جانے کب اس ظالم شخص سے محبت ہو گئی تھی
उसे खुद भी पता न चल सका। समरा ने अलमारी में से अपना एक जोड़ा निकाला और फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो तैयार थी। उसने नेवी ब्लू कलर का कामदार जोड़ा पहन रखा था। वो सामिया के कमरे की तरफ गई थी। वो जानती थी कि सामिया इस वक्त बेहद दुखी होगी। वो उसे तसल्ली देना चाहती थी, मगर सामिया के कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। समरा काफ़ी देर तक उसके कमरे का दरवाज़ा बजाती रही, यहाँ तक कि घर के सब लोग सामिया के कमरे के बाहर इकट्ठे हो गए। मेहमान भी आ चुके थे और अब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, जबकि मास का बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे। उसने लात मारकर कमरे का दरवाज़ा खोला, मगर सामने का मंजर देखकर सब लोग अपनी जगह साकित से हो गए। सामिया फर्श पर गिरी हुई थी, जबकि उसकी कलाई से खून निकलकर फर्श को रंगीन कर रहा था। मास को लगा अब वो कभी सांस नहीं ले सकेगा। वो बिजली की सी तेजी से सामिया की तरफ बढ़ा और उसे अपने बाजों में उठाकर बाहर की तरफ भागा था। वो उसे लेकर सीधा अस्पताल गया। डॉक्टर उसे इमरजेंसी में ले गए थे। उसका खून बहुत बह चुका था। उसकी हालत तशवीशनाक थी, जबकि मास हारा हुआ था। शीशे के पार अपनी बहन के साकित वजूद को देख रहा था। सामिया ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। इस बात ने सबको हिला कर रख दिया। मास अपनी बहन की यह हालत देखकर बिल्कुल टूट गया था। उसने बाप बनकर अपनी बहन को पाला था और उसकी ये हालत वो देख नहीं सकता था। उसका दिल कई टुकड़ों में टूट गया। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसकी दाढ़ी को भिगो रहे थे, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। समरा ने मास के कंधे पर हाथ रखा। मास ने सुर्ख निगाहों से उसे देखा। मैं टूट गया हूं। मैं इसे इस हालत में नहीं देख सकता। इसे मैंने पाला है, मास ने नम लहजे में कहा। आपकी जिद ने ही आपकी बहन को इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर आप अपनी बहन की पसंद के सामने झुक जाते, अपनी अना को मार लेते, तो आज ये सब नहीं होता। समरा ने अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए उससे कहा था, जबकि मास ने बेख्तियार अपने बाल जकड़े थे। समरा, बस एक बार मेरी बहन ठीक हो जाएगी। इसे इस हालत में मैं नहीं देख सकता। वो जो चाहेगी मैं वही करूँगा। वो आलम से शादी करना चाहती है तो मैं उसकी शादी आलम से करा दूंगा। बस वो एक बार ठीक हो जाए, मास ने टूटे हुए लहजे में कहा था। मास की बिगड़ती हुई हालत देखकर समरा भी अपने आंसुओं पर काबू ना रख सकी थी। वो भी अपनी जान से अजीज दोस्त को इस हालत में नहीं देख सकती थी जो उसके भाई की मोहब्बत थी। सामिया जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और मास हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी जिंदगी के लिए दुआएं कर रहा था। आखिरकार सबकी दुआएं रंग ले आईं। सामिया को होश आ गया था। वो मौत को शिकस्त देकर जिंदगी की जानिब लौट आई थी। मास बेख्तियार ही सजदे में गिरा था। उसने सामिया को हमेशा के लिए खोने का खौफ महसूस किया था। उसने आलम को फ़ोन करके अपने घर बुला लिया। आलम अपनी जान की परवाह किए बगैर मास से रोज़ ही मिलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके गार्ड्स उसकी ये सारी कोशिशें नाकाम बना देते थे। आज मास ने खुद से उसकी माँ को फ़ोन करके घर बुलाया था। वो इस बार भी अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके घर आया था। इतने वक्त बाद अपने भाई और अपनी माँ को सामने देखकर समरा चंद लम्हों के लिए साकित हुई और फिर दौड़कर सूफिया बेगम के सीने से लग गई। सूफिया बेगम भी उसे अपने सीने से लगाए ज़ारो कतार रो दी। मास ने यह मंजर देखकर बेख्तियार खुद को कोसा था। मास ने आलम और सूफिया बेगम से माफ़ी मांगी थी और सामिया का रिश्ता देने की भी हामी भर ली थी। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। यूं लग रहा था खुशियां वापस आ गई हों। समरा सूफिया बेगम और आलम के साथ ही चली आई थी। उसने मास से कहा था कि वो अपने घर जाना चाहती है। मास ने सर उठाकर चंद लम्हों के लिए उसके चेहरे को देखा और फिर उसे जाने की इजाज़त दे दी। उसे एहसास था कि उसने समरा के साथ ज्यादती की है, मगर जाने क्यों समरा के जाने से वो बेचैन सा हो गया था। सामिया दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी। इसी असना में बारात आने का शोर उठा था। सामिया ने अपने धड़कते दिल को संभाला। माज ने एक नज़र भर कर समरा को देखा। वो उसे मेहरून रंग के जोड़े में बेइंतहा हसीन लग रही थी।
اس نے اپنی پسند سے سمرہ کو شاپنگ کروائی تھی۔ سامیہ کی رخصتی ہونے لگی تھی جب معاذ نے سمرہ کی کلائی تھامی تھی اور اسے ایک کونے میں لے کر گیا۔ کل میں تمہیں لینے آؤں گا، معاذ نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ آج سامیہ اور عالم کی بارات تھی تو کل معاذ اور سمرہ کی بارات طے تھی۔ سمرہ نے سرخ پڑتے چہرے سے معاذ کی طرف دیکھا اور جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ گئی تھی۔